Okay. Hi everyone. Good morning. So this is another session on the C Sharp CSS, where in the last session we learn about some background colors in the CSS. Then we saw the box model where we were having margin, padding, border. What is the difference between all these three CSS property? We saw that already. Then how to use external CSS, what are all colors we can use with the CSS, what is the X value, what is RGB, standard colors name, all these things. Now we will see some more additional properties inside the C Sharp CSS and see how we can just use them. Okay. So in the syllabus, I just added the CSS alignment as well. Like if you want to move your text from left to center, center to right, and also V alignment is there, like top, middle, and bottom. So this V alignment we can use when you are working with the tables or some boxes. Okay, in that case we can use V alignment. But for like horizontal alignment, you can go with the left, center, and right. Same like this. You can see this is the Word document. In this, we are having left alignment, center alignment, and right alignment. Okay. So if I click here and make it center, you can see it came to the center. And if I click on the right, it will go to the right side. And I want to make it to the left again, so you can click on the left. So same like this, we can do by using the CSS. Okay, let's check that. So if you go to your code, let's say I have one paragraph here. Okay, this is paragraph. Okay, and if I run this file, right click, double click here, you can see this is in left align. So by default alignment will be top left. Okay, on the top side, left side. Now I want to make it to the center. I want to move this paragraph from left side to center. How we can do that is go here, and you can use embedded CSS in this case, because we wanted to work with a single page, right? So that's why we can only use uh, embedded CSS. यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक पैराग्राफ टैग डाला है. ओके, ये पैराग्राफ टैग है, इसको अभी मुझे सेंटर में लेके जाना है. सो इसका क्या सिलेक्टर बनेगा, पी फॉर एलिमेंट सिलेक्टर, बिकॉज अपने पास एक ही पैराग्राफ है अभी. ओके, अगर मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ है और उसमें से मुझे स्पेसिफिक पैराग्राफ को ही CSS अप्लाई करना है, इन दैट केस मैं क्या करूंगा, उस पैराग्राफ का कुछ क्लास लूंगा या फिर आईडी लूंगा, तो यहाँ पे डालूंगा, या फिर उसका ग्रैंड चाइल्ड सिलेक्टर देखूंगा, सिबलिंग सिलेक्टर देखूंगा. Okay, so in our case only one paragraph is present, so let's go with that element selector. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, text align center. See, it is now center place. Right में लेके जाना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो text align right. Okay, तो इस तरीके से you can control the alignment on the web page by using the CSS. नेक्स्ट है वी अलाइनमेंट. वी मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट. ये कब चलता है, जब आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स को विड्थ एंड हाइट सब कुछ हमने दिया हुआ है. Now you want to make it vertical center and horizontal center. So we can you go with that. You can just go here and mention V vertical align. Okay, so यहाँ पे क्या क्या होता है, मिडल होता है, टॉप होता है, okay, और बॉटम भी होता है. So you can just use this alignment, but it will only work when you are working inside the table data, or you have a box with the some fixed width and height. In that case only that will work. Okay, so this is about the alignment. If you go next, there are fonts as well, like you can go with the font tag as well, where yeah, so यहाँ पे let's say you want to apply some font styling, font family, font weight, font size, and it's a shorthand also. I will show you what is shorthand. But if you want to work with the font, then you can just use this font property of the CSS. Like
you want to like font family. Okay, so you can use any font. Like I want to use, let's say, Times New Roman. Just save it, refresh it. Okay, it is by default Times New Roman. Let's change it to font family colon Georgia. Okay, you can see the difference. Okay, this is your Georgia font. Now, if you want to change it to, let's say, Calibri or something, you can use that. Brush script is also there is one for brush script. Okay, something like this. No, you can take the name from here actually. Whatever fonts are available here in the drop down, you can use them. It is like brush script empty. See, this is your brush script. Okay, if you want a cursive font, so you can use any font available in this drop down. Okay, just go here like this. Okay, I want, let's say, something new. This one. So you can just copy this name from here, whatever it was. What was that? Algerian. Okay, so just go here, Algerian. Just type that name. Check the spelling mistake, and it will become like that. Okay, so you can use any font available in your computer, and then you can just use them. You can also use any other font which is not available in your computer, but you have to import that through the font file, and then you can use it. Okay, next one is font style. So font style means if you want to make it italic, like this font style, so it has italic, then yeah, only this one, italic, normal, and oblique. Okay, if I click on the italic, you can see it will become the italic like this. Let me change the font to default one. Now you will see it better. Okay, this is italic effect. Then strike through effect also we can do, I believe. It is text decoration text. Okay, it is not a font property. So you can just use a font style italic or normal. Okay, this also you can use. Normal is by default. आपका ये जो नॉर्मल रहता है फॉन्ट ऑब्लिक फॉन्ट हाइफन स्टाइल कोलन नॉर्मल, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं. ओके, आपको क्या करना है, अगर इसको इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट अगर आपको डिफॉल्ट रखना है सो यू कैन जस्ट सिंपली रिमूव दिस प्रॉपर्टी. ओके, देखो ये जो है ना फॉन्ट इटैलिक या फिर फॉन्ट के रिलेटेड जितने भी आपको वैल्यूज आते हैं वो सब आपको विजुअल स्टूडियो कोड में ही मिल जाते हैं. जैसे ही मैं इसे टाइप करता हूँ यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल कोलन, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होगा. इट विल ऑलवेज अवेलेबल इन द विजुअल स्टूडियो कोड आईडी. और ये सेम चीज आपको ब्राउजर में भी मिल जाएगी. जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट में गया, और इस पी टैग को हमने क्या लगा हुआ है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक लगाया. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहता है ना, इट इज कम्प्लीटली इट इज अवेलेबल इन ब्राउजर ऑल्सो. यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो कि ऑब्लिक मतलब क्या, नॉर्मल मतलब क्या, इटैलिक मतलब क्या, ये सब आप यहाँ पे भी देख सकते हो. ओके, और जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई भी कर सकते हो लाइव रिव्यू देख के. लेकिन जो भी चेंजेस आपने यहाँ पे ब्राउजर में किए हैं, डोंट फॉरगेट टू कॉपी देम इन योर सोर्स कोड लाइक दिस. तभी जाके वो क्या होगा, इट विल बी यहाँ पे अप्लाई होगा. मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप रिफ्रेश करोगे ना, तो यहाँ पे वो अप्लाई होगा. So it will only happen when you are copying your source code from the page to the code. नहीं तो फिर यहाँ पे ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है, यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करोगे इट इज टेम्पररी ओनली. मतलब जैसे आप रिफ्रेश करो निकल जाएगा. सो मेक श्योर टू कॉपी दैट. ओके, नेक्स्ट वन है फॉन्ट वेट. फॉन्ट वेट यानी यू कैन जस्ट मेंशन लाइक दिस. तो ये जो आप वर्ड पैड देख रहे हो ना, यहाँ पे ये सब चीजें जितनी दिख रही है यहाँ पे, ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस. जैसे अभी मैंने आपको
लेफ्ट, सेंटर और राइट, ऐसे 3 अलाइनमेंट बताए। और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे है देखो, ये वाला, सॉरी पता नहीं, यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट्स नहीं है, बट टॉप मिडल बॉटम हम कर सकते हैं। और ये जो फॉन्ट हमने अभी लगाया, ये हम कैसे लगाएंगे, फॉन्ट फैमिली। ओके, ये क्या है अभी, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मतलब जो अभी मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे जाना है आपको, लिखना है फॉन्ट साइज कोलन। ये अगर नेम के फॉर्मेट डालना है आपको, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, ऐसे आप डाल सकते हो, या फिर आप पिक्सल में भी डाल सकते हो, जैसे कि 12 पिक्सल इज डिफॉल्ट वन। ओके, यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसकी 12 पिक्सल है। आप उसको बढ़ा सकते हो, मुझे बड़ा वाला फॉन्ट चाहिए, सो यू कैन मेक इट टू 20 पिक्सल लेट्स से। तो ये बड़ा हो गया। ओके, यू कैन चेंज इट टू 25 पिक्सल, ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज। मुझे छोटा करना है, लाइक 8 पिक्सल करना है, तो ये छोटा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे साइज है, ओके ग्रेट। तो ये फॉन्ट साइज हम ऐसे बढ़ा सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पिक्सल। पिक्सल भी डाल सकते हो आप, VH डाल सकते हो। ओके, वर्टिकल हाइट, देन यू कैन ऐड परसेंटेज में डाल सकते हो 8%। लेकिन ये कब चलेगा, जब आपका जो पेरेंट ड्यू इससे रिलेटिव है। ओके, तभी तो आप पिक्सल में डाल सकते हो, ये हो गया स्टार्टिंग। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया मान लो 14 पिक्सल, रिफ्रेश। Got it? So this is how you can use the size. Now go to the weight. weight यानी देखो, इटैलिक हमने देखा, अभी हमें देखना है बोल्ड। ये वर्ड एडिटर जो है, वर्ड फाइल एडिटर, इसी में आपको सारी चीजें अवेलेबल है। जस्ट वी आर गोइंग टू डू देम प्रोग्रामेटिकली। प्रोग्रामेटिकली कैसे करना है वो बस हम देख रहे हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ CSS। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने देख लो, यहाँ पे मैंने फॉन्ट पेंट को सिलेक्ट किया और इसको बोल रहा हूँ मैं बोल्ड, क्या हुआ, इसका कलर थोड़ा डार्क हुआ और वेट बढ़ गया, बोल्ड हो गया, राइट। सो इंटरनली क्या हुआ रहेगा यहाँ पे, ये भी तो ब्राउजर में ही ओपन हुआ है, तो इंटरनली इन्होंने क्या किया है, एक CSS अप्लाई किया। CSS कौन सा, फॉन्ट वेट नाम का, ये वाला। तो ये CSS अगर आप अब भी अप्लाई करोगे ऐसा, फॉन्ट वेट, मैंने कर दिया बोल्ड, जैसे ऐसा CSS अप्लाई करोगे, ये भी, इसका भी कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगी। ओके, दिस इज योर फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। ओके, और इसमें भी कुछ प्रीडिफाइंड वैल्यूज है, वो आप यूज कर सकते हो, 100, 200, 300, 400, 500, और बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ऐसा। ये कभी कभी ये सब चलता नहीं है, 100, 200, 300, बस इतना चलता है। आइदर यू कैन मेक इट बोल्ड और नॉर्मल। ओके, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन the content CSS files which you are using. If you are using Bootstrap, then it can affect. Okay, यहाँ पे मैंने किया उसको नॉर्मल अगेन। ओके, सो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज। अभी ये सब चीजें मुझे एक ही लाइन में लगानी, कि भाई ये जो टेक्स्ट है ये मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा, राइट। तो फॉन्ट साइज इज 14, फॉन्ट वेट इज बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल इज इटैलिक। अभी एक फॉन्ट कलर करके रहता है, पता नहीं वो मैंने क्यों डाला नहीं, लेकिन फॉन्ट कलर भी है, आपको पता रहेगा फॉन्ट कलर क्या, सॉरी फॉन्ट कलर नहीं रहता है, दैट्स व्हाई आई हैवंट एडेड देयर, कलर ओनली। ओके, ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट ऐड इट हियर। तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल। ओके, उसके बाद है फॉन्ट फैमिली। मान लो मुझे डालना है मोनोस्पेस। ओके, ये फॉन्ट है, ये हमने यूज किया हो। अभी ये हमने 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज करके ये आउटपुट मुझे मिला है, 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Is it possible to use only one property and make the same output? Yes, that is possible with the help of shorthand. Shorthand में क्या होता है कि सेम चीज आपको अगर 4 लाइन पे आपने डिवाइड की है, उसको आप एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वो जो चारों प्रॉपर्टी है वो एक ही टाइप के CSS प्रॉपर्टी से बिलोंग करनी चाहिए। जैसे देखो, ये जो 4 डिफरेंट प्रॉपर्टी मैंने डाले हैं, इनका इनिशियल क्या है, फॉन्ट, 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 फॉन्ट। ओके, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फॉन्ट
कोलर। पहले क्या आएगा? साइज 14 पिक्सल, स्पेस, वेट नॉर्मल, स्पेस सॉरी वेट नॉर्मल क्यों, बोल्ड, स्टाइल इटालिक, फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस। हो गया। तो ये चारों चीजें मैं एक ही लाइन में ऐसे कर सकता हूँ, वी कैन कॉल इट एट शॉर्ट हैंड। अभी इसका सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, लेट्स चेक। पहले तो बोल्ड डालना है नहीं डालना है। तो पहला है बोल्ड। ठीक है, बोल्ड हो गया। उसके बाद जाएगा ऑन फैमिली आई बिलीव। सीक्वेंस देखना पड़ेगा। ओके, लेट मी चेक। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फॉन्ट कोलन बोल्ड इटैलिक। ओके, फॉन्ट प्रॉपर्टी शॉर्ट है। उसका सीक्वेंस है, सबसे पहले आप डालोगे इटैलिक, अपर केस लोअर केस बोल्ड पिक्सल जो आ जाओगे। सिंटेक्स कहाँ पे? ओके, फॉन्ट स्टाइल, देन वेरिएंट, देन वेट। ओके, तो पहला है अपना स्टाइल। स्टाइल मतलब ये वाला इटैलिक है या फिर नॉर्मल है। ओके, पहला है स्टाइल। नेक्स्ट वन इज वेरिएंट, देन वेट। वेट इज बोल्ड, then font size is 14 pixel. Next one is family. Now it should work. Okay, so you need to follow the sequence actually. So this sequence you can, I will mention here only. So पहला है style, then weight, then size, then font family. Okay, so this is the sequence for writing the shorthand. So within a single line you can go with the same output if you use like this. Okay, now go to the next, that is text. So text यानी क्या, कि जो हमने अभी फॉन्ट रिलेटेड चेंजेस किए, मतलब फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक। नाउ आई वांटेड टू डू मोर सम, do some more changes with the text like font color, text direction, text color, text direction, letter spacing, word spacing, indent, align, decoration, transform, all this thing. Okay, so let's go one by one. अभी पहला है टेक्स्ट कलर। ये कलर हमने देखा हुआ है ऊपर ही। ओके, यहाँ पे था, हमने कलर एक टॉपिक था इसमें ही देखा है। तो वी कैन बेसिकली अप्लाई द टेक्स्ट कलर टू योर कंटेंट, लाइक कलर कोलन रेड। ओके, इट इज योर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कलर नाम का एक प्रॉपर्टी है, उसमें रेड कलर आप नेम दे सकते हो, आरजीबी कलर वैल्यू में दे सकते हो, या फिर हेक्साडेसिमल में दे सकते हो, इस टाइप से। Okay, whatever color you provided here, save the file, refresh it here, you will get that. Okay, so this is your font color, text color, then text direction भी रहता है यहाँ पे ऐसा, text direction, only direction child. Okay, direction left to right, right to left ऐसा, LTR, RTL। ओके, LTR मतलब जो अपना डिफॉल्ट है, ये वाला LTR है। लेकिन मुझे राइट टू लेफ्ट करना है, उर्दू लैंग्वेज जैसा होता है उल्टा, सो RTL आप कर सकते हो। एंड यू कैन सी ये राइट में चलेगा, जैसे जैसे टाइप करोगे ये लेफ्ट साइड में आएगा।
ओके, तो दिस इज योर डायरेक्शन। मतलब नेक्स्ट है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब ये वाला, सॉरी, ये लाइन स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग मतलब ये जो कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर के अंदर अगर आपको स्पेस डालना हुआ है इन बिटवीन, तो यू कैन गो विद द लेटर स्पेसिंग एज वेल, लाइक दिस। लेटर स्पेसिंग तो आप डाल दे, मान लो 1 पिक्सल। ओके, हर एक लेटर में मुझे थोड़ा गैप चाहिए, तो ये थोड़ा गैप आ गया। और ज्यादा करना है, मान लो 2 पिक्सल, ये थोड़ा और स्पेस आ गया। और करना है 5 पिक्सल, तो ये क्या हो जाएगा, हर एक लेटर जो है उस लेटर के अंदर थोड़ा गैप छूटता है। सो दिस गैप वी कैन ऐड बाय यूजिंग द लेटर स्पेसिंग। ओके, वर्ड स्पेसिंग भी है, मतलब ये जो दो वर्ड्स है ना, उनके बीच में अगर गैप डालना है, तो ये देखो, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये गैप आप कम ज्यादा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्ड स्पेसिंग। अभी बहुत ज्यादा गैप आ जाए दोनों वर्ड में। ओके, सो दिस इज योर वर्ड स्पेसिंग। ओके, नेक्स्ट है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट है नहीं, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, लेट्स अज्यूम। ओके, मैं कुछ कंटेंट डालता हूँ। ये टेक्स्ट हम रिपीट कर देंगे। अपने पास इतने कंटेंट्स है वेब पेज के अंदर। ओके, लेट मी रिमूव दैट वर्ड स्पेसिंग, इट इज नॉट लुकिंग गुड। ओके, अभी इसमें क्या है कि ये जो पहला लाइन है, इसमें मुझे थोड़ा सा इंडेंटेशन बढ़ाना है। सो आई विल गो विद द टेक्स्ट इंडेंट। यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट। व्हाट हैपनिंग? अच्छा, we need to provide selector first. सॉरी, टेक्स्ट इंडेंट। तो इंडेंट हमने डाल दिया, मान लो 5 पिक्सल। क्या हो जाएगा, ये जो पहला लाइन है पहला, उसमें थोड़ा इंडेंटेशन आ जाएगा। इंडेंटेशन क्या होता है, कोई भी पैराग्राफ जब चालू होता है तो थोड़ा स्पेस देके हम चालू करते, राइट? सो दैट काइंड ऑफ इंडेंटेशन यू कैन प्रोवाइड टू योर टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। ओके, टेक्स्ट अलाइन हमने ऑलरेडी देखा है, तो इट विल बेसिकली प्रोवाइड यू द अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया राइट। ओके, राइट लेफ्ट एंड सेंटर, ये वाला, अरे सॉरी, ये हो गया राइट अलाइन। यू कैन सी स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, पूरा राइट साइड में अलाइन हो। तो दिस योर राइट अलाइन। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन एक है। टेक्स्ट डेकोरेशन यानी अगर आपको कुछ अंडरलाइन वगैरह डालना है, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट डालना है, तो यू कैन जस्ट यूज दैट टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अभी रिफ्रेश करो, आपको क्या आ जाएगा, आपके टेक्स्ट को एक ऐसा अंडरलाइन आ जाएगा। तो इफ यू वांट टू ऐड दिस अंडरलाइन टू स्पेसिफिक टेक्स्ट, जस्ट ऐड द स्पैन टैग देयर। ओके, मुझे ये पैराग्राफ नाम जो है इसी को अंडरलाइन करना है, तो मैं इसका सिलेक्टर यहाँ पे यूज करूँगा। ये देखो, इस टाइप में ये हो गया अंडरलाइन। ओके, देन अंडरलाइन छोड़कर और बहुत सारे थिंग्स है यहाँ पे, यू कैन जस्ट यूज देम। ओके, आप अंडरलाइन डाल सकते हो। ये लाइन थ्रू करके, लाइन थ्रू मतलब स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट जो मैं अभी बोल रहा था, इस टाइप से। ओके, जो वर्ड है उसके अंदर आपको एक लाइन डालना है, स्ट्राइक थ्रू। तो यहाँ पे भी है वो, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वर्ड में होता है यहाँ पे, ये वेब वर्जन है उसका, सो माइट बी नॉट प्रेजेंट हियर, या दिस वन। तो अगर आपने इसको सिलेक्ट किया और इस वर्ड को क्लिक किया, तो क्या हो गया, उसका एक स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट आ गया। तो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट वी कैन जस्ट ऐड इनटू आवर वेब पेज यूजिंग दिस वन, लाइन थ्रू। ओके, नेक्स्ट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मतलब आपको ये पैराग्राफ नाम का जो वर्ड है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो यू कैन डू लाइक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ओके, जैसे आप ऐसे देखो, विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर्स इन योर HTML पेज, यू कैन स्टिल ट्रांसफॉर्म योर टेक्स्ट टू द अपर केस, लोअर केस, एनी केस, टाइटल केस। ओके, तो इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस वन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। यही चीज आपको वर्ड में भी मिल जाएगी। मुझे इसको कैपिटल करना है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाके मैं उसको अपर केस कर सकता हूँ।
तो सेम थिंग, ये जो बटन यहाँ पे दिए हैं ना, ये बटन इंटरनली क्या करते हैं, CSS ही लगाते हैं अपने कंटेंट को। सो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस यानी एक एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, वाइट स्पेस, यहाँ पे नो रैप करके एक प्रॉपर्टी देता हूँ। वाइट स्पेस नो रैप, ऐसा रहता है वो। ये वाला नो रैप। नो रैप यानी क्या होता है कि जहां जहाँ पे व्हाइट स्पेस है, अपना बाय डिफॉल्ट इसका बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर क्या होता है, जहाँ पे स्पेस आता है वहां से वो लाइन कट हो जाता है और नेक्स्ट लाइन पे आता है। ओके। लेकिन अगर आपने ऐसा डाल दिया व्हाइट स्पेस इज नो रैप, तो वो क्या करेगा, उसको ब्रेक नहीं होने देगा। इस पैन को लग रहा है, हमें पैराग्राफ को लगाना है, दैट्स वाई। अभी देखो, सी, ये क्या हो रहा है कि जहां पे भी व्हाइट स्पेस है वहां पे रैप नहीं करना है। सो इट विल बिकम ओनली वन लाइन, सिंगल लाइन, लाइक दिस। ओके। ये कब हमें यूज करना पड़ता है, जब आपको मान लो एक कंटेंट है, कंटेंट आपके ड्यू के बाहर जा रहा है, तो आपको इलिप्सिस नाम का इफेक्ट लगाना है, डॉट डॉट डॉट। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, व्हाइट स्पेस इज नो रैप, ओवरफ्लो हिडन, टेक्स्ट डेकोरेशन इलिप्सिस, ऐसा किया तो डॉट 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 का लॉजिक आ जाता है। ओके। तो दिस इज फॉर दैट। और टेक्स्ट शैडो करके है, ये क्या करेगा, आपको टेक्स्ट को थोड़ा शैडो देना है, बैकग्राउंड शैडो, सो यू कैन प्रोवाइड दैट लाइक दिस, टेक्स्ट शैडो 2 pixel, let's say. 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel, ओके। सॉरी, यहाँ पे रेड कलर दे सकते हो इस टाइप। अभी ये जो शैडो का प्रॉपर्टी रहता है, उसमें 4 डिफरेंट वैल्यूज रहते हैं। ये 4 वैल्यूज मतलब क्या, एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट, ब्लर कितना करना है, उसका कलर क्या चाहिए। ओके। इस टाइप से। तो ये आप ब्लर ज्यादा करना है तो ये बढ़ा सकते हो, थोड़ा ब्लर हो जाएगा। ओके। एक्स ऑफसेट बढ़ाना है तो ये थोड़ा ये बढ़ा सकते हो, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में चली जाएगी शैडो। ओके। वाई ऑफसेट बनाना है तो ये कर सकते हो, नीचे की तरफ आएगी। ब्लर कम करना है, कम भी कर सकते हो। ये शैडो है। ओके। शैडो का कलर आपको देना है, आप यहाँ से देख सकते हो, आपको जो कलर पसंद आता है। मोस्टली शैडो ग्रे कलर में रहते हो, सो यू कैन जस्ट गो विद दिस। ओके। So this is how you can provide the text shadow in your web page. Okay. So these are the text properties you can use in the CSS. Okay. Text properties are there, and these are the font properties. Let me check if there is any other property we can go with in this session. Like, let's go with images. Okay, it is very straightforward. Like, if you use any image, if you want to add any image to your web page, obviously we can use IMG tag, right? So here you can add IMG SRC, and we can go with the image source. Like, let me add some images like nature images. Go to the images, and you can pick up any one like this. Right click, open image in new tab. This is the path. Okay. Just copy this path, close, close, and you can add that path in the SRC. Now let's refresh it. This is your image. Okay. Now this image I want to add some border. इस image को कुछ border लगाना है. I will go here, IMG. Okay, this is your tag selector. And here you can add border equal to solid, thin, black. Black का कलर क्या रहता है, 000. अभी रिफ्रेश करो तो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया, आपको दिख नहीं रहा है। सो लेट मी मेक इट टू 4 पिक्सल, आपको दिखेगा अभी। 4 में भी नहीं दिख रहा है। 10 पिक्सल,
See, this black color की border आ गई है. Okay, this kind of border we can add to your images with the help of border property. We can also use border radius to make the rounded borders. Okay, ये जो borders है ना, ये rounded हो जाएगी. थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा. See, थोड़ा rounded दिख रहा है अभी shape. Okay, you can change it according to your requirement, and you can see this is a rounded border here. Okay, height width भी अपन लगा सकते हैं image को. I want to apply height is 100 pixel, and according to that height it will automatically adjust the width. Okay, तो this width आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है in order to maintain the aspect ratio. Okay, अगर आपने हाइट नहीं लगाई और सर हाइट एंड विड्थ दोनों लगा दिए तो ये क्या होगा, उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है पिक्सल्स वो मैच नहीं होंगे, तो वो सही नहीं लगेगा. तो लेट मी चेंज इट टू लेट्स से 300. तो इसको भी मैंने 300 कर दिया. ओके, अभी क्या होगा देखो, इसके पिक्सल्स मैच नहीं हो रहे. सो आइदर अप्लाई हाइट और विड्थ टू नॉट चेंज एनीथिंग टू द पिक्सल. अभी मैंने क्या किया, विड्थ लगाया तो हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, या फिर वाइस वर्सा कीजिए, हाइट लगाओ विड्थ मत लगाओ तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा. ओके, लेकिन अगर दोनों चीजें आपने लगा दी तो उसके पिक्सल्स मैच नहीं होंगे, वो रेशियो रहता है एस्पेक्ट रेशियो मैच नहीं रहता होता है. मतलब आप ऐसे कुछ भी कर दोगे तो इमेज अच्छे से लगने भी चाहिए ना, इस काइंड ऑफ. तो इसके पिक्सल मैच नहीं होंगे. सो जस्ट डू नॉट अप्लाई both the properties together. Either apply height or width to adjust the size of your image, and it will also maintain the aspect ratio. Okay, नेक्स्ट है फ्लोट. फ्लोट क्या होता है कि मान लो अभी मैंने ये इमेज है राइट, इस इमेज को मुझे राइट साइड में लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको लिखूंगा फ्लोट राइट दिस. ओके, और इसको लेफ्ट ऑलरेडी राइट में है मान लो, तो उसको मुझे लेफ्ट में लेके जाना है तो फ्लोट लेफ्ट कर सकते हो. फ्लोट यानी अपने जो कंटेंट्स रहते हैं वेब पेज के उनके ऊपर से वो लेफ्ट साइड में चले जाएगा, उनका स्पेस रिजर्व नहीं करेगा. ओके, इवन द आवर कंटेंट्स आर लेफ्ट साइड, इमेज इज राइट साइड, मैंने इमेज को बोल दिया फ्लोट लेफ्ट, तो ये क्या करेगी, कंटेंट के भी आगे चली जाएगी इमेज, उनका स्पेस ये रिजर्व कर ले लेफ्ट साइड का. दिस इज व्हाट फ्लोट लेफ्ट एंड राइट, इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वी नीड टू यूज दैट. ओके, ये एक है सी एस एस लिंक. लेट मी क्विकली एक्सप्लेन दिस. मान लो अपने पास क्या है, एक एंकर टैग ए एच रेफ. ओके, https://www.google.com. ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया गूगल का वेबसाइट दिस टाइप. अभी देखो इसका कलर क्या है, एक पर्पल कलर दिख रहा है. ओके, वॉयलेट कलर. तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ब्लू क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज इट डिनोट्स दैट यू हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस लिंक. अभी मैं एक काम करता हूँ, दूसरा कोई लिंक लेता हूँ जो हमने अभी तक विजिट ही नहीं किया इस ब्राउजर में. तो लेट्स टेक yahoo.com में भी रिफ्रेश, ये भी विजिटेड है. ओके, अब एक काम करते हैं, ये विंडो में विजिटेड है राइट, तो लेट मी ओपन दिस इज इन इनकॉग्निटो मोड. अभी बताओ, दोनों ब्लू कलर में है राइट, बिकॉज इसको विजिट नहीं किया हुआ है. तो लिंक्स जो रहते हैं HTML के, उसका कुछ तो भी कलर कॉम्बिनेशन होता है which will help you to denote whether it has been visited or not. Okay, अभी यहाँ पे देखो ये कलर्स मुझे चेंज करना है कि भाई अगर विजिट किया तो इसका कलर मुझे रेड करना है, विजिट नहीं किया तो इसका कलर मुझे ग्रीन करना है, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए. क्या बोला मैंने, विजिट किया तो रेड, विजिट नहीं किया तो ग्रीन. so that you can do by using these pseudo properties. Okay, visited and link. लिंक यानी अनविजिटेड, विजिटेड यानी जिसको मैंने क्लिक किया हुआ. फिर मैं क्या करूंगा, एंकर कोलन लिंक, जिसको विजिट नहीं किया उसका कलर मुझे ग्रीन चाहिए.
ओके, एंकर विजिटेड, जिसको विजिट कर दिया है उसका कलर मुझे रेड चाहिए, इस टाइप, दैट्स इट। अभी आप देखो, रिफ्रेश करो, इसका ग्रीन दिखेगा। अभी मैं गूगल को विजिट करता हूँ। ओके, कम बैक, रिफ्रेश। हम्म, इसका कलर रेड क्यों नहीं हुआ? एक मिनट, हाँ। Okay, so yeah, so let's check why it is not become red. Right click, inspect। यहाँ पे हमने लिखा था ए कोलन विजिटेड, सो विजिटेड में भी थोड़ा गलत दिख रहा है। यहाँ पे रेड दिख रहा है। ओके, लेट्स चेक हियर। हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है मैं बताता हूँ। ये जो इनकॉग्निटो मोड रहता है ना, इसमें वो मेंटेन नहीं करता कुछ भी, कुकीज, हिस्ट्री, हिस्ट्री मेंटेन नहीं होता। So that's why even though I click here, come back, as we are not maintaining any history, it will not show whether it is visited or not। Okay, so that's why go here। अभी यहाँ पे रेड दिख रहा है, राइट। अभी ऐसा कुछ यहाँ पे डालेंगे और एक वेबसाइट जिसको विजिट नहीं किया हुआ है, कुछ भी डालेंगे। लेट्स डू दैट। मान लो मेरा खुद का कुछ वेबसाइट है, टेस्ट करके। ओके, टेस्ट.com तो ऑब्वियसली मैंने विजिट नहीं किया हुआ है, तो वैसे दिखेगा ग्रीन कलर में जिसको विजिट नहीं किया है, रेड कलर जिसको विजिट किया हुआ है। ओके, और है एच ओवर और एक्टिव। एच ओवर मतलब जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो उसका कलर ब्लू होना चाहिए, और कर्सर निकालूंगा तो फिर से आइदर ग्रीन या फिर रेड हो जाएगा। वो कैसे करना है? तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ए एच ओवर कलर ब्लू। ओके, रिफ्रेश करो, देखो इसके ऊपर जब मैं कर्सर लूंगा ये क्या हो जाएगा, ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू रेड, यहाँ पे ब्लू ग्रीन। गॉट इट? So this is how we can use this H over property। And now last one is active। Active मतलब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक छोड़ता हूँ, उसके बीच में जो भी कलर दिखना चाहिए उस वो कलर येलो चाहिए मुझे। ओके, लेट्स से, सो ए एक्टिव, यहाँ पे डाल दिया मैंने कलर कोलन येलो। तो ये येलो कब दिखेगा? जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा, देखो येलो। अभी मैं क्लिक छोड़ रहा हूँ तो उस पीरियड में मुझे वो कलर दिखेगा। ओके, सो दिस four different colors you can add if it is linked or visited or H over or active on the basis of your current state of your links। Okay, this is how you can basically use them। I think let me stop this recording now, and we'll see all these things in the next section. Let me stop.